Hello students, good morning. Welcome to Essay Sonic classes. Students, we were reading chapter 3, Types of Sentences of our English language book Cornerstone. In our last video, our topic was types of sentences. So students, we have read type of sentences in our last video and included this topic type of sentences. We have also read and solved exercise A, answer the following questions of the chapter 3 in our Fair English Language notebook in our last video. And students, today's our topic is also type of sentences. So students, included this topic types of sentences. Today we will read and solve exercise O. What do these sentences express according to your understanding of these sentences? Write the statement as question Q, command C, or strong feeling SF against them. Visit page number 6, and after student we will read and solve exercise A. Identify whether these sentences are declarative, imperative, interrogative or exclamative, then write the correct closing punctuation mark in each of the boxes. Visit page number 7 and 8, and last we will read and solve exercise C. Read this passage and mark these sentences as declarative D, interrogative IN, imperative IM or exclamative E, which is page number 9 in our English language book Cornerstone in our today's class. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly, because today's our topics are exercise O, exercise A, and last exercise C. Okay, so today we will read and solve exercise A, O, and C in our English language book Cornerstone in our today's class. Okay, so all students look at the page number 6. Let's see exercise O. Okay, your exercise O is what do these sentences express. Okay, it's mean कि ये sentences क्या express करते हैं. Express means व्यक्त. Okay, ये sentence ये वाक्य क्या व्यक्त करते हैं. According to your understanding of the sentences, write statement as question Q, command C, or strong feeling SF against them. Okay, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार ये जो सेंटेंसेस हैं, ओके, अगर ये स्टेटमेंट है तो एस राइट डाउन करिए, क्वेश्चन है तो क्यू राइट डाउन करेंगे, कमांड है तो सी राइट डाउन करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं तो एस एफ राइट डाउन करेंगे. ओके, इट्स मीन कि वाक्यों को अपनी समझ के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार स्टेटमेंट के लिए एस, स्टेटमेंट इट्स मीन कथन. ओके, स्टेटमेंट इट्स मीन कथन के लिए एस, क्वेश्चन इट्स मीन प्रश्न के लिए क्यू, कमांड इट्स मीन आदेश के लिए सी, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट्स मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इट्स मीन तीव्र अनुभव के लिए SF. ओके, हमें यहाँ पे शो करना. अगेंस्ट देम मीन्स, हियर द मीन ऑफ अगेंस्ट देम मीन्स उनके सामने या उनके पास. ओके, वाक्यों को अपनी समझ के अनुसार स्टेटमेंट के लिए एस, क्वेश्चन के लिए क्यू, कमांड इट्स मीन आदेश के लिए सी, एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इट्स मीन तीव्र अनुभवों के लिए SF उनके सामने या उनके पास लिखी. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, हमारा वर्क है एक्सरसाइजों में कि हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है. अगर स्टेटमेंट है, एक कथन है तो एस राइट डाउन कर देंगे. ओके, अगर क्वेश्चन एक प्रश्न है, ओके, तो क्यू राइट डाउन करेंगे. अगर कमांड है, आदेश दे रहे हैं क्वेश्चन, तो सी राइट डाउन करेंगे. लास्ट अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होकर है ना, अगर तीव्र अनुभव को ये शो कर रहा है तो हम एस एफ राइट डाउन करेंगे. स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो स्ट्रॉन्ग का हमने फर्स्ट लेटर एस लिया है एंड राइट डाउन करेंगे, एंड फीलिंग का एफ, तो एस एफ राइट डाउन करेंगे स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, या क्या आप अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं. ओके, होमवर्क इट्स मीन गृह कार्य. ओके, so students, your first number sentence, have you completed your homework, it's a क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन है. ओके, बिकॉज योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस आस्क का क्वेश्चन. ये जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस ये क्वेश्चन आस्क कर रहा है ना. ओके, कि क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर क्यू. ओके, इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक, बिकॉज योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, प्रश्न है. ओके, लेट्स सी सेकेंड नंबर सेंटेंस. और सेकेंड नंबर सेंटेंस इज टुडे इज़ अ ब्राइट डे. ओके, ब्राइट डे इट्स मीन होता है उज्ज्वल दिन. ओके, या स्पष्ट दिन. टुडे इज़ अ ब्राइट डे इट्स मीन कि आज एक उज्ज्वल दिन है, आज एक स्पष्ट दिन है. क्लियर, ब्राइट मीन्स उज्ज्वल या स्पष्ट. सो इट्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है. ओके, सो स्टूडेंट राइट डाउन एस फॉर स्टेटमेंट इन दिस सेकेंड नंबर ब्लैंक. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज टुडे अ ब्राइट डे. ओके, इट्स मीन कि इज टुडे अ ब्राइट डे, क्या आज उज्ज्वल दिन है. ओके, क्या आज उज्ज्वल दिन है या क्या आज स्पष्ट दिन है. सो स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न है. ओके, क्योंकि क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, प्रश्न कर रहा है कि क्या आज उज्ज्वल दिन है. ओके, सो स्टूडेंट राइट डाउन हियर क्यू फॉर क्वेश्चन इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक. ओके, लेट्स सी फोर नंबर सेंटेंस. ऑफ फोर नंबर सेंटेंस इज वियर अ सन हैट. ओके, इट्स मीन हैट मीन्स टोपी. ओके, सन मीन्स होता है धूप. ओके, सन में सूर्य होता है, बट यहाँ पे सन का सन ले रहे हैं हम धूप में. ओके, वियर अ सन हैट इट्स मीन एक धूप की टोपी पहन. ओके, जो सन लाइट से खुद को सेव करने के लिए जो हम लोग हैट लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं हैट. ओके, सन हैट, तो एक धूप की टोपी पहने. तो स्टूडेंट्स, जो 4 नंबर सेंटेंस गिव अस अ कमांड. ओके, ये कमांड देता है. ओके, ये कमांड इसने दी है कि वियर अ सन हैट, एक
सन हेड पहनो, एक धूप की टोपी पहनो सनलाइट से बचने के लिए. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन सी फॉर कमांड in this 4 number blank. Okay, let's see 5 number sentence. So 5 number sentence is what a bright day it is. Okay, what a bright day it is, it's mean ये कितना उज्जवल दिन है. Okay, कितना स्पष्ट दिन है, कितना उज्जवल दिन है. Okay, so we can see this 5 number sentence and with a exclamation mark, and we have read that we have used exclamation mark with exclamatory sentences. Okay, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं ना. और ये जो व्हाट अ ब्राइट डे इट इज़, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं ना. योर 5 नंबर सेंटेंस इज शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहे हैं ना, तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर एस एफ in this 5th number blank. Okay, for strong feeling. Clear? That's the 6th number sentence. और 6th number sentence is take out your books. Okay, it's mean अपनी books निकालिए, अपनी किताबें निकालिए. Okay, so student your 6th number sentence is giving us a ये कमांड दे रहा है ना, कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है ना कि टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स निकालो. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर सी फॉर कमांड इन दिस 6 नंबर ब्लैंक. ओके, तो इस पर क्या राइट डाउन करेंगे, सी राइट डाउन करेंगे 6 नंबर ब्लैंक पे. लेट्स सी 7 नंबर सेंटेंस. और 7 नंबर सेंटेंस इज आई एम नॉट फीलिंग वेल. ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल. फीलिंग मीन्स अनुभव करना, वेल मीन्स अच्छा. आई एम नॉट फीलिंग वेल, इट्स मीन कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ. इट्स मीन हो गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं. ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं. ओके, so students it's a statement. Okay, ये statement है, कथन है. So student write down here as in 7 number blank. Okay, for statement. Clear? Let's see 8 number sentence. So 8 number sentence is watch out. Okay, watch out means ध्यान रहे. Okay, so student we can say in this 8 number sentence, this 8 number sentence and with a exclamation mark, and we have read that we always use exclamation mark in the end of exclamatory sentences. exclamatory sentences के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं ना. तो स्टूडेंट्स 8 नंबर सेंटेंस इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि वॉच आउट, इट मीन ध्यान रहे. ओके, सो स्टूडेंट्स इसलिए इट्स योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एक, बट ये जो आपका 8 नंबर सेंटेंस है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को भी शो कर रहा है. ओके, एक्सक्लेमेटिक है बट ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है ना. ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो वॉच आउट है ध्यान रहे. ओके, ध्यान रहे एक्सक्लेमेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन इससे इसका एंड हो रहा है. एंड वी हैव रीड कि अगर ऐसे कुछ सेंटेंस है, अगर कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो इम्परेटिव सेंटेंस है. ओके, कमांड दे रहा है बट फोर्सफुली कमांड कर रहा है. ओके, जैसे वॉच आउट. ओके, वॉच आउट मीन्स ध्यान रहे, तो ध्यान रहे तो आपको एक कमांड दे रहा है. ओके, कमांड दे रहा है लेकिन ये फोर्सफुली कमांड दे रहा है, तो इट्स योर 8 नंबर सेंटेंस इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस. एक इम्परेटिव सेंटेंस है. ओके, लेकिन इसका जो एंड हो रहा है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से हो रहा है, क्योंकि ये फोर्सफुली कमांड कर रहे. ओके, तो 8 नंबर सेंटेंस आपका आपको कमांड दे रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर सी फॉर कमांड इन दिस 8 नंबर ब्लैंक. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क से हम ये देख सकते हैं कि अगर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकता है. ओके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर है, बट ये इम्परेटिव सेंटेंस है. ओके, क्योंकि ये कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है कि वॉच आउट, ध्यान रहे. ओके, और वी हैव रीड, हम रीड कर चुके हैं कि अगर कोई सेंटेंस कमांड दे रहे बट फोर्सफुली कमांड दे रहे हैं तो उसका एंड एक्सक्लेमेशन से होता है. क्लियर? तो यो 8 नंबर सेंटेंस इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका एंड इसलिए हो रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क से क्योंकि फोर्सफुली कमांड कर रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर सी in this 8 number blank. Okay, for command. So students, we have completed this exercise, and I hope you must have understood this exercise. So you have no problem in any sentence of this exercise. Okay, now we are going to solve exercise A. Okay, so let's see exercise A. Your exercise A is identify whether these sentences are declarative, interrogative, imperative or exclamative. Then write the correct closing punctuation mark in each of the boxes. Okay, इट्स मीन कि हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ये जो सेंटेंसेस है डिक्लेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटिव. ओके, और ये जो सेंटेंसेस अगर इम्परेटिव है, डिक्लेरेटिव है, इम्परेटिव है या एक्सक्लेमेटिव है, जिस टाइप का भी सेंटेंस है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी एंडिंग करनी है. ओके, हमें पंक्चुएशन मार्क का भी यूज़ करना है. ओके, हमें क्या करना है कि हम राइट द करेक्ट क्लोजिंग पंक्चुएशन, हमें करेक्ट क्लोजिंग पंक्चुएशन का यूज़ करना है सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग. ओके, तो स्टूडेंट्स योर ए नंबर एक्सरसाइजेस, पहचानिए कि ये वाक्य डिक्लेरेटिव इट्स मीन कथात्मक, इंट्रोगेटिव इट्स मीन प्रश्नवाचक, इम्परेटिव इट्स मीन आदेशात्मक और मिस या एक्सक्लेमेटिव इट्स मीन विस्मयादिबोधक या भावबोधक है. ओके, हमें ये पहचानना है कि ये जो वाक्य है डिक्लेरेटिव इट्स मीन कथात्मक, इंट्रोगेटिव इट्स मीन प्रश्नवाचक, इम्परेटिव इट्स मीन आदेशात्मक और मीन्स या एक्सक्लेमेटिव इट्स मीन विस्मयादिबोधक हैं. ओके, ये पहचान है. एंड देन राइट द करेक्ट क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क इन ईच ऑफ द बॉक्सेस. उस फिर क्या करना है स्टूडेंट, एंड फिर प्रत्येक बॉक्स में सही समापन विराम चिन्ह लिखे. ओके,
तो करेक्ट हमें क्लोजिंग पंचुएशन का यूज़ करना है सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग. लेट्स से फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज व्हाट अ टेरिबल क्रैश इट वाज. ओके, what a terrible crash it was. Okay, स्टूडेंट्स क्रैश मीन्स होते दुर्घटना या हादसा. ओके, दुर्घटना या हादसा बोलते. तो व्हाट अ टेरिबल क्रैश इट वाज, इट्स मीन कि यह कितना भयानक हादसा था, ये कितनी भयानक दुर्घटना थी. ओके, टेरिबल मीन्स भयानक. सो स्टूडेंट्स योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इट्स अ, आपका जो फर्स्ट नंबर सेंटेंस है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है. ओके, एंड इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स मार्क हियर इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, द करेक्ट क्लोजिंग पंचुएशन फॉर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके लिए करेक्ट पंचुएशन. लेट्स सी सेकंड नंबर सेंटेंस. और सेकंड नंबर सेंटेंस इज गेट दिस बुक फ्रॉम दी स्टेशनरी शॉप. स्टेशनरी मीन्स होता है या द मीन ऑफ स्टेशनरी, कागज या कलम से रिलेटेड जो शॉप होती है उसे बोलते हैं स्टेशनरी शॉप. ओके, जहाँ से बुक्स पेन वगैरह सब ले सकते हैं उसे बोलते हैं स्टेशनरी शॉप. ओके, इट्स मीन कि यह पुस्तक स्टेशनरी की दुकान से प्राप्त करें. ओके, सो स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर सेंटेंस इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस. इट गिव्स अ एडवाइस, ये एडवाइस दे रहा है. ओके, कि यह पुस्तक स्टेशनरी की दुकान से प्राप्त करें. ओके, स्टेशनरी की बुक से कि स्टेशनरी की शॉप से ये बुक प्राप्त करें. ओके, तो एक इम्परेटिव सेंटेंस है. सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज क्लोजिंग पंचुएशन फॉर इम्परेटिव सेंटेंसेस इज फुल स्टॉप, कि हम इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स मार्क हियर फुल स्टॉप इन दिस सेकंड नंबर ब्लैंक. ओके, योर सेकंड नंबर सेंटेंस इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस. लेट्स सी थर्ड नंबर सेंटेंस. और थर्ड नंबर सेंटेंस इज हाउ ब्यूटीफुल योर रोज गार्डन इज. इट्स मीन कि आपका गुलाब का बगीचा कितना सुंदर. ओके, सो स्टूडेंट्स योर थर्ड नंबर सेंटेंस इट्स शोइंग a strong feeling. Okay, so students it's a exclamatory sentence. Okay, so students the correct closing punctuation for third number sentence is exclamation mark. Okay, so put on in this third number blank exclamation mark. Okay, let's see four number sentence. So four number sentence is Avni is the best dancer in our class. Avni हमारी क्लास में सबसे अच्छी डांसर है, बेस्ट डांसर है, सबसे अच्छी नृतक है. ओके, so it's a statement. Okay, and students so put on in this four number blank full stop. Okay, फॉर शोइंग इट्स योर स्टेटमेंट. ये आपका स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट शो करने के लिए इसका जो करेक्ट क्लोजिंग पंचुएशन है वो क्या होगा, फुल स्टॉप होगा. ओके, तो फुल स्टॉप उन्नत करिए. योर फाइव नंबर सेंटेंस इज प्लीज स्टॉप ड्राइंग फेसेस ऑन माई न्यू बुक. इट्स मीन कि कृपया मेरी नई किताब में चेहरे बनाने बंद करिए. ओके, सो स्टूडेंट योर फाइव नंबर सेंटेंस इज शोइंग अ रिक्वेस्ट. ये इस रिक्वेस्ट को शो कर रहा है. ओके, ये रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, विनती को शो कर रहा है, अनुरोध को शो कर रहा है. एंड इट्स योर इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, क्योंकि ऑर्डर और रिक्वेस्ट एंड कमांड से सब इम्परेटिव सेंटेंसेस के इंक्लूडेड आते हैं ना. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट पंचुएशन, द करेक्ट क्लोजिंग पंचुएशन फॉर फाइव नंबर सेंटेंस इज फुल स्टॉप. ओके, सो स्टूडेंट्स पुट ऑन दिस फाइव नंबर ब्लैंक फुल स्टॉप. ओके, लेट्स सी six number sentence. Your six number sentence is when does school reopen after this summer break. Okay, it's mean कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल कब खुलता है. ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स अ क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स पुट ऑन दिस सिक्स नंबर बॉक्स क्वेश्चन मार्क. ओके, लेट्स सी सेवन नंबर सेंटेंस. सो सेवन नंबर सेंटेंस इज प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ योर म्यूजिक सिस्टम. इट्स मीन कि कृपया अपने म्यूजिक सिस्टम का, म्यूजिक सिस्टम में संगीत संयंत्र. ओके, अपनी म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम कम कर दे. ओके, तो स्टूडेंट्स योर सेवन नंबर सेंटेंस इट्स शोइंग अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट को शो कर रहा है. ओके, सो स्टूडेंट इट्स योर इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस है एंड वी हैव रीड इट, वी ऑलवेज यूज फुल स्टॉप in the end of imperative sentences. Okay, so students put on in this seven number box full stop. Okay, let's say eight number sentence. और eight number sentence is Prakriti loves drawing pictures of all kinds of animal. It's mean प्रकृति सभी प्रकार के जानवरों का चित्र बनाना पसंद करती है. It's a statement. Okay, so students put full stop in this eight number box. Okay, because your eight number sentence it's a statement. Clear? तो eight number sentence का जो correct closing punctuation होगा वो क्या है, full stop. Okay, let's see nine number sentence. और nine number sentence is this is the cupboard where we keep the chalk and duster. Okay, it's mean ये वह अलमारी है, ये वह कबर्ड है जहाँ पर हम चौक और डस्टर रखते हैं. Okay, so it's a statement. So students it's a statement. एक statement है, कथन है. So students put a full stop in the end of this sentence. Okay, we can say that put a full stop in this nine number box. nine number box पे full stop put on करिए. Okay, and the correct closing punctuation for this nine number sentence is full stop. Clear? Let's see ten number sentence. Or ten number sentence is how many books did you borrow from the library this week. It's mean कि आपने इस
दिस सॉरी हाउ मैनी बुक्स ओके डिड यू बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी दिस वीक, आपने इस सप्ताह पुस्तकालय से कितनी पुस्तकें उधार ली. ओके सो स्टूडेंट योर 10 नंबर सेंटेंस इट्स अ क्वेश्चन, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य. ओके क्वेश्चन आस्क कर रहा है. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट क्लोजिंग पंक्चुएशन फॉर दिस 10 नंबर सेंटेंस इज क्वेश्चन मार्क. सो स्टूडेंट्स पुट क्वेश्चन मार्क ऑन दिस 10 number box. Okay let's see 11 number sentence. 11 number sentence is Istanbul. Okay it's mean कि Istanbul is the most important and popular city of Turkey. It's mean कि इस्तांबुल ओके इस्तांबुल तुर्की की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है. ओके पॉपुलर सिटी है. तो इस्तांबुल तुर्की की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शहर है. क्लियर. सो इट्स अ स्टेटमेंट. सो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट है. सो पुट फुल स्टॉप इन दिस 11 नंबर बॉक्स. ओके 11 नंबर बॉक्स में फुल स्टॉप पुट ऑन करिए. ओके let's see 12 number sentence which is last sentence of this exercise. Okay so look clearly your 12 number sentence is what a thrill it would be to win a trip to Switzerland. Okay what a thrill, here the meaning of thrill it's mean romanchkari. Okay what a thrill it would be to win means जीतना a trip of Switzerland. Okay it's mean कि स्विट्जरलैंड की एक यात्रा जीतना कितना रोमांचकारी होगा. Okay so students this 12 number sentence is showing a strong feeling. It's a exclamatory sentence. Okay so students put exclamation mark in this 12 number box. Okay the correct closing punctuation for 12 number sentence is exclamation mark. Okay so students we have completed this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Okay your first number correct closing punctuation mark is exclamation mark. Okay your first number sentence exclamatory sentence hai. So students listen clearly. Your first number correct closing punctuation mark is exclamation, second full stop, third exclamation mark and 4. Okay let's see 4. Your 4 correct closing punctuation is full stop, 5 full stop, 6 question mark, 7 full stop, 8 full stop, 9 full stop, 10 question mark, 11 full stop and last 12 exclamation mark. Okay so students now we are going to solve this exercise C. Okay and I hope you must have understood. You have understood this exercise A. You have no problem in any sentence of this exercise. Okay so also look at the page number 9. Let's say exercise C. Your exercise C is read this passage. Okay इस passage को पढ़िए. Passage means अंश या अंश बोलते हैं. Okay पैसेज मीन्स अंश. ओके तो इस अंश को पढ़िए, इस पैसेज को पढ़िए. ओके तो इस पैसेज को पढ़िए एंड मार्क दिस सेंटेंसेस. ओके इट्स मीन कि सेंटेंसेस जो हैं इन्हें मार्क करिए. ओके मार्क करना इट्स मीन इन्हें इन पे मार्क करना है, इन्हें चिन्हित करना है. ओके पैसेज मीन्स अंश या अंश बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि एक टॉपिक बोल सकते हैं. ओके तो एक अंश या पैराग्राफ. ओके तो इस अंश को पढ़िए, इस पैसेज को पढ़िए और सेंटेंसेस को मार्क करिए, सेंटेंसेस को चिन्हित करिए एज डिक्लेटिव. डिक्लेटिव है कथात्मक है तो डी से मार्क करेंगे. इंट्रोगेटिव है अगर प्रश्नवाचक है तो आई एन से मार्क करेंगे. इम्परेटिव है तो आई एम से मार्क करेंगे. एक्सक्लेमेटिव है तो ई से मार्क करेंगे. ओके हमें क्या करना है, पैसेज को रीड करना है, पैसेज को पढ़ना है और फिर अगर हमारा सेंटेंस डिक्लेटिव है इट्स मीन अगर कथात्मक है तो डी मार्क करेंगे. इंट्रोगेटिव अगर प्रश्नवाचक है ओके क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम आई एन मार्क करेंगे. अगर इम्परेटिव है आदेश का इम्परेटिव है आदेशात्मक है. ओके अगर ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके कमांड कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ओके तो हम आई एम मार्क करेंगे. और अगर एक्सक्लेमेटिव है इट्स मीन अगर विस्मयादि बोधक या भावबोधक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है, ओके तो हम क्या करेंगे, ई मार्क करेंगे. क्लियर. सो लेट्स रीड दिस पैसेज. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस ऑफ दिस पैसेज इज मोहित लव टू ईट. ओके इट्स मीन कि मोहित को खाना बहुत पसंद था. ओके so it's a declarative sentence, so student mark D. Okay in this first number box पे D mark करिए. He ate anything and everything. Anything means कुछ भी, everything means सब कुछ. Okay तो he ate anything and everything. Ate is the second form of eat. It means खाना, it means खाता था. Okay वह कुछ भी और सब कुछ खाता था. It means वह सब कुछ खाता था, उसे कुछ भी दे दो. Okay और सब कुछ खाता था, जितना उसे दोगे वो पूरा फिनिश कर जाएगा. His mother smiled as Mohit gobbled up all the greasy parathas with plenty of butter. Butter means makhan. Greasy means here the meaning of greasy that चिकनाई युक्त, तेल युक्त. Okay so students it's mean कि जब मोहित ने सारे चिकनाई युक्त और तेल युक्त पराठे बहुत सारे मक्खन के साथ, बटर मीन्स मक्खन के साथ निकल लिए. ओके गोबल्ड. ओके GOBBLED गोबल्ड मीन्स निकल लिए. ओके इट्स मीन बिना चबाए निकल लेना. ओके तो निकल लिए तो उसकी माँ ने स्माइल किया, उसकी माँ मुस्कुराई. ओके सो स्टूडेंट इट्स अ डिक्लेटिव सेंटेंस. ओके एक स्टेटमेंट है, डिक्लेटिव सेंटेंस है. ओके सो स्टूडेंट्स मार्क डी इन दिस सेकेंड नंबर ब्लैंक. ओके और स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड नंबर था ना,
ही एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो सेकंड नंबर ब्लैंक पे सबसे पहले जो सेकंड नंबर बॉक्स है उस पर डिमार्क करिए, एंड लास्ट थर्ड नंबर जो मैंने अभी आपको सेंटेंस एक्सप्लेन किया है इसमें भी डिमार्क करिए। ओके, हाउ एवर मोहित सिस्टर मीता डिड नॉट ईट मच एट ऑल। ओके, तो हाउ एवर मीन्स यद्यपि मोहित सिस्टर, मोहित की जो बहन है, ओके, मीता, उसका क्या नेम है, मोहित की सिस्टर का नेम मीता, डिड नॉट ईट मच एट ऑल। ओके, यद्यपि मोहित की बहन मीता बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाती थी। ओके, so it's a declarative sentence, so mark D in this box. Okay, demark करिए, and let's see, when their mother took them to a fast food restaurant, Mohit would feast on burgers and pizzas and french fries. Okay, it's mean कि जब मोहित की माँ उन्हें फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले गई, एक फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में भोजनालय, ओके, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट या फास्ट फूड के भोजनालय में ले गई। ओके, तो मोहित क्या करेगा, मोहित ने क्या खाया, तो मोहित क्या करते हैं, मोहित बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ास खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाएगा। ओके, सो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो मार्क डी इन दिस बॉक्स। आफ्टर दैट ही वुड हैव अ ट्रिपल संडे और समटाइम्स टू। ओके, आफ्टर दैट, इसके बाद भी, जब इतना सारा पिज़्ज़ास बर्गर फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद भी उसके पास और क्या क्या होते हैं खाने के लिए, तो उसके पास ट्रिपल। ओके, here the mean of triple। ओके, आफ्टर दैट, ओके, इसके बाद भी ही वुड हैव अ ट्रिपल। ओके, TRIPLE, ट्रिपल मीन्स होता है एक टिया। ओके, इसके बाद भी उसके पास एक टिया संडे, CUNDE। ओके, SUNDAE, संडे मीन्स स्टूडेंट्स होता है फल मिश्रित आइसक्रीम। ओके, उसके पास एक तिहाई संडे ही होगा, फल मिश्रित आइसक्रीम होगी, और कभी कभी तो दो भी हो जाती थी। ओके, तो स्टूडेंट इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो मार्क डी इन दिस ब्लैंक। ओके, डॉक्टर बोस वाज कॉल्ड, सॉरी, सो स्टूडेंट्स लेट्स सी नेक्स्ट। तो जब उसने बर्गर्स खा लिए, पिज़्ज़ास खा लिए, और इसके बाद भी उसके पास संडे ही होती थी। ओके, मोहित के पास वो सारा सब कुछ खा लेता था, उसे जो भी मिलता था। क्लियर? तो आफ्टर दैट ही वुड हैव अ ट्रिपल संडे और समटाइम्स टू। ओके, इसके बाद भी उसके पास एक तिहाई संडे या फल मिश्रित, संडे मीन्स फल मिश्रित आइसक्रीम, या कभी कभी दो भी हो जाती थी। ओके, सो वी कैन सी हियर वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, सो इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स मार्क ई इन दिस ब्लैंक। ओके, इस ब्लैंक में ई मार्क करिए, बिकॉज योर सेंटेंस आफ्टर दैट ही वुड हैव अ ट्रिपल संडे और समटाइम्स टू, इट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिकॉज सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। बट मीता वुड बी स्ट्रगलिंग टू फिनिश हर फर्स्ट बर्गर ऑल द वाइल। जबकि जो मीता होती है वो अभी अपना फर्स्ट बर्गर को फिनिश करने के लिए ही स्ट्रगल कर रही होती है, उसी ही फर्स्ट बर्गर को ही फिनिश करने के लिए, उसी समाप्त करने के लिए, उसे ही खाने के लिए संघर्ष कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है। ओके, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो मार्क डी इन दिस ब्लैंक। ओके, mark D in this box, and let's say next, I wish Meeta would eat as well as Mohit, thought her mother। तो उसकी माँ क्या सोचती कि काश, I wish means काश, मीता भी मोहित की तरह खाती। ओके, जितना मोहित ज़्यादा खा लेता है, जो भी दे दो वो खा लेता है, वैसे मीता भी खा लेती। ओके, सो इट्स अ इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस जैसे I wish हो गया कि काश, ऐसा होता है ना, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो स्टैंड मार्क I am इन दिस बॉक्स। क्लियर? आई एम मार्क करिए, क्योंकि ये आपका ये जो सेंटेंस है IBS वाला, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। वन डे मोहित फेल्ट टेरिबली इल, टेरिबली मीन्स भयानक रूप से। एक दिन क्या होता है, मोहित जो होता है भयानक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो स्टूडेंट्स मार्क डी इन दिस सेंटेंस, सॉरी इन दिस बॉक्स फॉर दिस सेंटेंस। ओके, मार्क डी in this box for showing declarative sentence. Okay, Dr. Bose was called to examine Mohit. Examine means निरीक्षण। ओके, तो डॉक्टर बोस को मोहित के निरीक्षण के लिए बुलाया गया। ओके, मोहित की जांच के लिए बुलाया गया। तो स्टूडेंट्स इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो मार्क डी। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। योर नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर लुक्ड एट मोहित एंड सेड, मिसेस मलिक व्हाट डज योर सन ईट। ओके, तो जो डॉक्टर है उन्होंने क्या मोहित को देखा और क्या कहा कि मिसेस मलिक आपका बेटा क्या खाता है। ओके, आपका बेटा क्या खाता है। सो स्टूडेंट्स इट्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, डॉक्टर क्वेश्चन कर रहे हैं मिसेस मलिक से। ओके, सो स्टूडेंट्स मार्क आई एन in this blank, okay, because it's an interrogative sentence. Let's see next, my son's a good boy. Okay, said Mrs. Malik. Mrs. Malik बहुत ही हैप्पी होकर बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ओके, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। ओके, माई सन्स अ गुड बॉय, इट्स मीन कि मेरा बेटा ओके एक अच्छा लड़का है। ओके, सो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो मार्क डी इन दिस बॉक्स। ओके, ही ईट्स एवरीथिंग आई पुट बिफोर हिम, वह सब कुछ खाता है जो मैं उसके सामने रखती हूँ। ओके, सो इट्स आल्सो a declarative sentence, so students mark D in this blank, okay, in this box.
The doctor could not believe her ears when she heard the list of the things that Mohit loved to eat. डॉक्टर को, जो डॉक्टर था ना, जो डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, जो डॉक्टर था चिकित्सक था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने उस लिस्ट को सुना, उस सूची को सुना. ओके, उस लिस्ट ऑफ थिंग्स, ओके, उन चीज़ों की सूची को सुना. ओके, जो थिंग्स के लिस्ट को हियर किया, इट्स मीन चीज़ों की, उन चीज़ों की सूची को सुना जो मोहित खाना पसंद करता था. ओके, तो उनकी माँ ने जब डिटेल में बताया कि मोहित ये ईट करना पसंद करता है. ओके, तो डॉक्टर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. ओके, जब उन्होंने उन सारी चीज़ों की सूची को सुना जो मोहित खाना पसंद करता था. ओके, सो इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सो स्टैंड मार्क दी इन दिस बॉक्स. ओके, मिसेस मलिक सी सैड मोहित इट्स ऑल दी रॉन्ग थिंग्स. ओके, अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि मिसेस मलिक, मोहित है वो सारी रॉन्ग थिंग्स खाते हैं, सारी गलत चीज़ें खाते हैं. ओके, सो स्टैंड इट्स एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बिकॉज इट्स सो स्ट्रॉन्ग फीलिंग. ओके, जब डॉक्टर ने सुना, उसे अपने ईयर पे बिलीव नहीं हुआ, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोल रही है. ओके, ये तो सारी गलत चीज़ें खाता है. तो उन्होंने क्या कहा कि मिसेस मलिक सी सैड, ओके, मोहित इट्स ऑल दी रॉन्ग थिंग्स. ओके, उन्होंने कहा कि जो मोहित है वो सारी गलत चीज़ें खाता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर दिस सेंटेंस इट्स शोइंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा है. ओके, तो स्टूडेंट्स मार्क ई फॉर सेइंग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस. ओके, इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में ई मार्क करिए इसे एक्सक्लेमेटिव शो करने के लिए. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट. देन व्हाट शुड वी डू. ओके, देन व्हाट शुड वी डू, इट्स मीन कि तब हमें क्या करना चाहिए. ओके, देन मीन्स द व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, सो मार्क आई एन इन दिस बॉक्स फॉर शोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आस्क्ड मिसेस मलिक ने पूछा कि तब हमें क्या करना चाहिए. ओके, गिव हिम प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड केरलास, सेड द डॉक्टर. ओके, एंड नो चॉकलेट्स, कैंडीज, टॉफ़ीज़ etc. अब डॉक्टर ने क्या कहा कि इसे अधिक मात्रा में, ओके, फ्रेश फूड दो, ताज़े फल दो, ग्रीन वेजिटेबल दो, हरी सब्जियाँ दो और केरेला दो. ओके, और इन्हें चॉकलेट, ये जो मोहित है इसे चॉकलेट, कैंडीज, टॉफ़ीज़ बिल्कुल भी मत दो. ओके, सो स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर है वो एडवाइस कर रही है मोहित की मदर को. ओके, सो इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, क्योंकि एडवाइस कर रही है ना. सो स्टूडेंट्स मार्क आई एम इन दिस बॉक्स. ओके, लेट्स सी, लुक एट हिज टीथ, इसके टीथ देखो, इसके दांतों को देखो. ओके, सिस्टर वी कैन सी दिस सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि इसके दांतों को देखो. ओके, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है. सिस्टर मार्क ई इन दिस बॉक्स. ओके, दे आर फुल ऑफ कैविटीज, ये कैविटीज से भरे हुए. ओके, कैविटीज मीन्स होते हैं दांतों में सड़न, दांतों का क्षय होना. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस आल्सो सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट्स आल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सो स्टूडेंट मार्क ई इन दिस बॉक्स फॉर शोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, so student, we have solved this exercise C and I hope you must have understood this exercise C. You have no problem in this exercise C. Okay, students, your first number sentence, it's a declarative sentence. Okay, second था declarative and third था declarative and आपका जो fourth number sentence था declarative था and आपका जो फ्रेंच फ्राइज वाला सेंटेंस था जो लास्ट में था सेंटेंस के, वो भी आपका डिक्लेरेटिव था. और जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस था आफ्टर डेट वाला, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था. बट मीठा वुड बी वाला सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव था. टेरिबल इल वाला आपका सेंटेंस डिक्लेरेटिव था एंड वन डे वाला आपका जो सेंटेंस था डिक्लेरेटिव था. एंड द डॉक्टर लुक एट मोहित एंड सेड वाला था, ये आपका इंट्रोगेटिव था. ओके, एंड माई सन्स आर गुड बॉय, इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, एंड आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस था कि मोहित लव टू ईट, ओके, ये एक डिक्लेरेटिव था. एंड इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो सेंटेंस है रॉन्ग थिंग्स वाला, इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड देन व्हाट शुड वी डू, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड स्टूडेंट्स देन योर नेक्स्ट सेंटेंस जो डॉक्टर ने एडवाइस की थी ना थिंग्स कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये वाला सेंटेंस आपका इम्परेटिव था. ओके, आई एम मार्क किया था. एंड स्टूडेंट्स देन जो टीथ वाला सेंटेंस था हमारा, ओके, कि लुक एट हिज टीथ, it's an exclamatory sentence and they are full of cavities, which is last sentence of this passage is exclamatory. Okay, so student, we have solved this exercise C and I hope you must have understood this exercise C. So student, today's classwork is that complete exercise O, A and C of this chapter in our English language book Cornerstone. It's a today's classwork and student, your homework is that learn exercise O, A and C of this chapter from your English language book Cornerstone. It's a today's homework. Okay, आपका classwork है कि आपको चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज O, A एंड C अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक कॉर्नरस्टोन में कंप्लीट करना. आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज C, O एंड A अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की बुक से लर्न करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you must have understood all this exercise A,
O, C, you have no problem in any exercise. You have also must understood your class 1 homework. Okay, so all students, complete your exercise O, A and C of chapter 3 types of sentences in your English language book Cornerstone and send me your work here. Thank you.